الفضول، حلف الفضول، یہاں پہ بھی اعراب اور تلفظ کی غلطی ہے، ہمارے اردو زبان میں سارے حلف الفضول، حلف الفضول اس کو کہا گیا۔ بمانا معاہدہ، حلف بمانا ایگریمنٹ، حلف بمانا پیکٹ، عہد و پیمان، یہ حلف ہے، حلف الفضول۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک زبیدی شخص زبیدی قبیلے کا آیا اور اس نے آ کر اپنا سامان عاص بن وائل کو بیچ دیا، قریشی سردار عاص بن وائل کو اپنا سامان بیچ دیا۔ سامان بیچنے کے بعد رقم کا تقاضا کرنے لگا تو عاص بن وائل نے کہا چلو یہاں سے نکلو، میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ یہ قریشیوں کی معاملات کی حالت تھی، یعنی عاص بن وائل جیسا سردار ایک عام زبیدی کو کہہ رہا ہے چلو یہاں سے نکلو، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، یہ حرم کے پاسبان ہے۔ لیکن اس واقعے کی وجہ سے عرب کے اندر یہ طریق ساز معاہدہ پیش آیا۔ وجہ کیا بنی؟ اس زبیدی نے خانہ کعبہ کے غلاف کے قریب جا کے چند اشعار کے جو آج بھی عربی ادب میں زندہ ہیں، اور ان اشعار کو عرب آج بھی مظلوم کی حمایت کے لیے پڑھا کرتے ہیں۔ یا آل فہرن، یا آل فہرن لمظلوم بذاتہ، اے آل فہر سے مراد قریشی ہو، یعنی اس نے شعر پڑھے خانہ کعبہ کے قریب آ کے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے، جو اس وقت چادر تھی، اور صدا دی یا آل فہرن لمظلوم بذاتہ ببطن مکہ نا الدار والنفر، کہا اے آل قریش میں ایسا بندہ ہوں جو اپنے گھر سے دور ہوں، نہ میرا کوئی رشتہ دار موجود ہے، نہ میرا یہاں پہ خاندان موجود ہے، مجھے بتاؤ میں ایک ایسا مسافر ہوں جس نے ابھی تک عمرہ ادا نہیں کیا، عمرے کا احرام نہیں اتارا، اور تم یہ حجر اور حجر اس کے پاسبان ہو، یعنی حتیم کے اور حجر اسود کے مابین جگہ کے پاسبان ہو، ادھر کھڑا ہو کر ندا دے رہا ہے۔ اور عربی زبان کے یہ مشہور اشعار کے، یہ اشعار کون سن رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب اشعار سنے، ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ان الحرام لمن تمت کرامتہ ولیس الحرام لصوب الفاجر الغدر، عزت اور عظمت اس کی ہوتی ہے جو دل سے تقوی کو اختیار کرتا ہو، عزت اور عصمت اس کی نہیں ہوتی جو عاص بن وائل جیسا غدار اور بدکار ہو۔ زبیر بن عبد المطلب نے کہا اب نہیں رہا جا سکتا، اب نہیں ہو سکتا کہ اس حرم کعبہ کے اندر کوئی بندہ اپنا سامان بیچے آئے اور سامان خریدنے والا اس کو پیسے ادا نہ کرے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ اس حل کے لیے زبیر بن عبد المطلب نے 4 قبیلوں کو آواز دی۔ کون کون سے 4؟ آج بڑی دشمنیوں کی داستانیں روافد نے بنائی ہوئی ہیں۔ پہلی آواز بنو ہاشم کو، دوسری کس کو دی؟ بنو امیہ کو۔ یہ باتیں کہاں سے نکلی ہیں؟ بنو امیہ اور بنو ہاشم جی آپس میں دشمن تھے، معاذ اللہ، آپس میں جی لڑائیاں تھیں۔ بنو مخزوم کو تیسری آواز لگائی، بنو زہرہ کو چوتھی آواز لگائی، اور تریح نے ان 4 قبیلوں کو اس حلف کی وجہ سے کس نام سے پکارا؟ مطیبین۔ ایسے پاک قبیلے، ایسے عمدہ قبیلے، ایسے پکیزہ قبیلے کہ جن کی خوشبو سے دیگر جہان معطر ہو جائے۔ بتائیے اس حلف کو حلف الفضول کے علاوہ حلف المطیبین کہا جاتا ہے، بتائیے، یعنی پکیزہ قبیلوں کا حلف، پکیزہ قبیلوں کا ایگریمنٹ۔ ان پکیزہ قبیلوں میں بنو ہاشم بھی اور بنو امیہ بھی ہیں۔ یہ سب داستانیں جھوٹ کی، فراڈ کی گڑی ہوئی ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں کوئی جناب جی آپس میں، یہ اس حلف میں شامل ہیں۔ بنو زہرہ بھی اور بنو مخزوم بھی شامل ہے۔ یہ وہی بنی مخزوم ہے کہ جس کی عظمت اور عزت کو دیکھتے ہوئے بندے آئے اور نبی کریم کو کہا اس بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر دی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بنو مخزوم حلف المطیبین ان 4 عمدہ قبیلوں میں سے ایک کی عورت ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا ایک پیمانہ مقرر کیا۔ کیا کہا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا،
तुम बनु महजूम की फातिमा की बात करते हो, बनु हाशिम की फातिमा हो, मेरी बेटी हो, मेरी लख्ते जिगर हो, अल्लाह की कसम अगर वो भी चोरी करेगी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ काट दूंगा। ये 4 अजमत वाले कबीले इकट्ठे हुए, इन्होंने एक मुआहिदा किया कि आज के बाद खाना काबा में नहीं, मक्का की सरजमीन हदूद हरम के अंदर जब कभी भी जुल्म होगा, ये 4 कबीले उस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और मजलूम की मदद करेंगे। बताइए, उस मुआशरे के अंदर, इस हिलफ के अंदर बड़ी इबरतें हैं। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, शहिदतु हिल्फल मुतय्यबीन, मैंने इस हिल्फे फदूल में शिरकत की फी दारी अब्दुल्ला इब्ने जदआन। फी दारी अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला इब्ने जदआन के घर के अंदर यह मुआहदा हुआ था और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआहदे में शरीक था। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करता कि मुझे कोई सुरख ऊंट दे और लालच के तौर के ऊपर मजलूम की हमायत से दस्तबरदारी के लिए सुरख ऊंट दे दिए जाए और कोई मुझे कहे मैं इस मुआहदे को तोड़ दूं। अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इस्लाम में भी जब भी मुझे कोई इस मुआहदे की तरफ बुलाएगा मैं लब्बैक कहूंगा। यह सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलूमों की हमायत के लिए उस मुआहदे के अंदर उस वक्त भी कुदरती तौर पर आप शामिल हैं। उस वक्त अभी नबी नहीं है लेकिन उस मुआहदे में शामिल है, बनु हाशिम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उस मुआहदे का रिजल्ट, एक बात साबित हो गई कि अरब के अंदर बाद लोग ऐसे जरूर मौजूद थे जो जुल्म को नापसंद करते थे। और यहां पे एक बात मैं आपको बताऊं, इस मुआहदे के अंदर सीरत नगारों ने इसकी बड़े दुरूस और इबरतें बयान की है कि अल्लाह की कसम, जुल्म से बड़ा जुल्म यह होता है कि जुल्म को देख के खामोश रह जाए। यह जुल्म से बड़ा जुल्म है कि जुल्म को देख के खामोश रह जाए। आस बिन वाइल ने लूट लिया एक बंदे को, पूरा कुरैश खामोश कि हमारा सरदार है, उसने लूट लिया, खामोश रह जाए। बदबख्ती की, बेईमानी की और तासुब की और जानबदारी की इब्तदा इस बात से होती है जब इंसान ये देखता है, अच्छा मेरे भाई ने, अच्छा मेरे दोस्त ने जुल्म किया, इसको बर्दाश्त किया जाए। क्यों? जुल्म चाहे अपना सगा भाई, बेटा, बाप कर रहा हो, आपने उसके खिलाफ आवाज को खड़ा करना है। यही उस दौर का भी ये दरस है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे की अजमत और पासदारी कब कर रहे हैं? इस्लाम लाने के बाद। कह रहे हैं अल्लाह की कसम, मुझे आज भी कोई उस मुआहदे की तरफ पुकार देगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के चला जाऊंगा। क्यों? उस मुआहदे के अंदर जालिम को रोकने का हुक्म है, मजलूम की हिमायत का हुक्म है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जुल्म के खिलाफ, मजलूमों की हिमायत में गुजरी है। ये बात आप सब जानते। इस मुआहदे का इतना असर हुआ कि उसके जवाब में जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने भी शेर कहे और क्या कहा, अल्लाह की कसम ये मुआहदा उस दिन तक कायम रहेगा जब तक समुंदर के अंदर पानी का एक कतरा भी बाकी है। कुरैशियों ने यह मुआहदा अपनी तरफ से किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी, देखे, इस मुआहदे की ऐसी लाज रखी है कि हरमे काबा को आज भी यह हुर्मत और फजीलत हासिल है। बहुत जगह जुल्म हुए, बहुत बदअमनी है, बहुत से मसाइल है, मुसलमान उम्मत उसका शिकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काबे की हुर्मत बाकी है। आज भी काबे की हुर्मत बाकी है। और यह किस वजह से है? यह मैं और आप, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही बात। हमारे एक नमाजी भाई हैं, सईद भाई, हम एक दिन बैठे हुए, उन्होंने इस बात की तरफ निशानदेही की कि आप जब सीरत को बयान कर रहे हैं, लोगों के सामने यह बात भी रखिए कि सीरत बयान क्यों की जा रही, सीरत से अहस क्या करना है। अगर हमने सीरत के ये सबक समझे ही नहीं और एक कहानी और स्टोरी की तरह यहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनकर चले गए, तो बताइए हकीकत बात यह है, ये तो फिर एक किस्सा और कहानी हो गई। हमने इससे दुरूस और इबरतें क्या हासिल की हैं? मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नमूना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होनी चाहिए। बात कहने को हम बड़ी कह देते हैं कि हमारे नबी ऐसे हैं जी, हमारे नबी ने
गैर महरम औरत को देखना तो दूर की बात है, उनके हाथ को भी देखना गवारा नहीं किया। लेकिन हम सुबह शाम सोशल मीडिया के फितने का शिकार हैं, टीवी के फितने का शिकार हैं। बताइए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यह बात मिलती है ना, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक घर घर नाच और गाने वालियां दाल ना हो जाएं। किसके घर में? मुसलमान लोगों के घरों में। शर्मिंदगी की बात है। बताइए, क्या इससे मुराद सिर्फ यही थी कि औरत बजाते हुए चल के आए? नहीं, इससे मुराद यह भी है कि घर के अंदर टीवी लगा है, औरत 2 रुपए का ब्लेड भी नाच नाच के बेच रही है। नाच नहीं रही, टीवी को अब गुनाह ही नहीं समझा जाता। टीवी गुनाह ही नहीं है, खबरें सुनने के लिए है। उस खबरों के दौरान भी ऐसे ऐसे लगव इश्तिहारात आते हैं, उसमें औरत नाच नहीं रही। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी पेशीन गोइयां दुरुस्त साबित नहीं हो रही कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक घर घर के अंदर नाचने और गाने वाली आ ना जाए। आज कौन सा घर है? इल्ला माशा अल्लाह। आज अल्लाह की कसम नेकी के मेयारात ही बदल गए। आप पे और मेरे पे फर्ज है कि हम इन शैतानी आलात को, इनका इस्तेमाल अगर पॉजिटिव आप समझते हैं कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन यह भी बहुत मुश्किल है। इन शैतानी आलात को आपने और मैंने, यह हमारे पे फर्ज था, इन नाचने और गाने वालियों को अपने घरों से निकाला जाए। लेकिन हम खुद पैसे खर्च करके 40-50 लाख रुपए का टीवी अपने घर में लेके आ रहे हैं, लाख रुपए का मोबाइल हाथ में है। इधर बटन दबाओ, इधर दुनिया की जोन सी मर्जी औरत आपके सामने बेहिजाब है। ये कैसे फितने हैं? ये फितने उमड़ रहे हैं, लेकिन मैं और आप, हमें ख्याल नहीं। हम नबी की सीरत, नबी की पकीजगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारत बहुत बयान करेंगे, लेकिन जब अमल की बात आएगी हम सिर्फ सुनने वाले हैं, अमल करने वाले नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।